My friends, my family, my relatives are very angry with me. They say we are following you on Instagram, on Facebook, on Twitter, and your timeline is full of TCS, Lenskart, and whatever is happening in Jammu, some other corporate house, something. The thing is, I am posting all this again and again because people I've noticed, especially Hindus, have a very short memory span. They forget very fast and then they forgive also very fast. Like this, they forgive and then they forget also. So I'm going to keep on. The thing is, the biggest mistake I made was that I did not, highlight Kanhaiya Lal incident, Umesh Kole's incident, Palghar Sadhu's incident. I did not do that, and I regret that. The thing is, now if I talk about it, people just don't pay attention. But this case, I'm not going to stop discuss. So we have with us today Sameer. I don't know his surname because we all know him as Sameer and Besura. What? Sorry. Tansen. Besura Tamsen. So Should I hi put that? Sameer. Should I put that in the header there or in the footer? No, no, it's okay. Sameer is okay. I know him as Sameer and Besura Tansen. So hi Sameer. Hi. The thing is, why I've invited Sameer as my guest today is because TCS, Lenskart, especially TCS, the Amravati case, it happened in Maharashtra. And I did interview one of the journalists, but I wanted to, journalists, they know so much inside thing, the inside and they sometimes land up hiding a lot of things. Sameer is going to be very blunt, very forthright, and be about this whole case. So, Sameer, Amravati, TCS, what the hell is happening in Maharashtra? So I think it's not just Maharashtra. When the TCS news suddenly erupted, exploded, if I could use that word, I posted a very, it just was it came from within Maneka. Perhaps this TCS shocker is just the tip of of the iceberg, and in the coming days you will see a lot many more people being very vocal about what's happening at their workplace. I guess it was all the tipping point was TCS. A dam can hold only up to a certain point. Once the floodgates are open, then you can't stop it. And why should you? To be very honest, जैसे अभी whatever you said, people are upset with you or whatever for constantly bringing this up. But the point is, this has been happening. It's just that people nobody spoke about it, and now that we are talking about it, the victim cards come out very easily. You've seen how brazenly these people support their own criminals. That lady who woman Arfa, she calls it what, corporate majoritarianism. Yeah. And then this ex MLA from Maharashtra, Wow. Owaisi का Jalil, नाम हाँ. सही है. He said 180 कहाँ थी? There was only 8 women. What do you mean only 8 women? Yeah, if I was allowed to be profane on a public platform, I would have said a lot of things. But what the hell do you mean by 8 women? Yeah, how dare you say this? But they're taking us for granted. That is the whole problem. But आप देखोगे अभी और आएगा. I'm sure there'll be a lot more happening coming out. Because it is happening. I'm telling you, it's been happening across the board. It's just that people were not willing to talk about it. One more thing came up from TCS Pune, na Hinjewadi. I don't know whether it's confirmed, but a lot of people did post. I have not yet posted it because it's not come out in as a news item. Mhm. But people are sharing screenshots of private messages which people have sent, saying that the entire men's rest area was converted into a prayer room, Yeah. and Yeah. entry They posted pictures also. हाँ pictures post किए थे ना, and the entry for outsiders was restricted while those people were praying. अरे भाई क्या हो रहा है? We've all come out of corporate. We've served at the highest levels in corporate. At least during my whatever I was in corporate for about a decade and a half. I never saw anything like this happening. To be very honest, I was privy to a lot of management decisions. This is a more, I think 2000 के बाद का 2005, 6, 7 के बाद का phenomenon, or maybe 2000. Sorry, I don't know. Maybe last 15 years or so, this probably has been gradually increasing. I Why are they doing? Why are they doing this, Sameer? Why are they doing this all over? Whether it is like schools, colleges. आज मैंने एक और केस डाला इसमें. वहाँ पे आप कहते everybody says कि Kerala story is a propaganda. It's just don't watch it, and they've just exaggerated the whole thing. There's no thing like love jihad. Today I saw a video in which a girl was making these school girls in Kerala, making them wear a hijab, asking them to remove their tika. And now where will this lead to? This will lead to the Hindu girls
having Muslim boyfriends. And where will this lead to? This will lead to conversion. So issue is that they want to convert everyone. That's the problem. That's fact, and they don't make any bones about it. Not just in Yeah. India. If you listen to a video, there are clips of immigrants in Europe, Canada. They are very openly saying it. People in Belgium was immigrants from Belgium were saying that you guys are not producing enough children. We are multiplying fast. Sooner or later, we will be the majority here. They said that in Canada also. You can't escape reality. Thankfully, that's not what happened in India. But the goal, so that but here the goal, therefore, they are doing is inorganic. No, they're trying to convert people. And वो The thing Hindus is, का because हमारी हमारी लैंग्वेज सेम है ना, तो चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यहाँ से तो हम लोग क्या, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं. वी नो व्हाट और द मोडस ऑपरेंडी इज. और पायल क्या है, वेस्टर्नर्स डोंट हमारी नो. हमारी जनरेशन और हमारे बाद वाली तो पूछो मत, बट आवर जनरेशन ऑल्सो टू अ लार्ज एक्सटेंट इज फेयरली डीरेसिनेटेड. वी हैव ग्रोन अप ऑन वॉचिंग बॉलीवुड मूवीज स्क्रिप्टेड बाय कादर खान एंड दीज पीपल. तो वो वैसे ही मतलब वो मतलब आई डोंट नो विच इज दैट हैंडल जो पोस्ट करते रहता है. बहुत सारी मूवीज, आइकॉनिक मूवीज जो हमने उस वक्त देखे एंड वी थॉट दे वर आइकॉनिक. वो बिल्ला नंबर 786 पहनता है और मंदिर जाने से मतलब उसको परहेज है. he doesn't like to go to the temple because वो No, he's an atheist. हाँ, he's an atheist. नास्तिक है वो, और बिल्ला नंबर 786 पहन लेता. मतलब ये सारा बकवास हम देख के झेल के भी यार, झेला नहीं हमने, तो एंजॉय किया है ना उस समय, because we didn't know what was going on. And Sameer, जावेद अख्तर, सलीम जावेद, ये बड़े सेक्युलर बनते हैं और बोलते हैं वी आर एथिस्ट एंड हम तो हिंदू धर्म में भी मानते हैं, सब ये मानते हैं. तुम्हें याद है शोले में जया भादरी लालटेन जला रही होती है रात को, रोज रात को, पर मस्जिद में लाइट होती है, वहां से अजान सबको सुनाई दे रही होती है. मस्जिद में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी होती है. मतलब हम लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया, बिकॉज हम लोग को इतना सिखाते आ रहे हैं ना. हम लोग इतने ऐसे लिबरल स्कूल में पढ़े, कॉन्वेंट स्कूल में, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस ही नहीं हुए. गुरुकुल थे ही नहीं हमारे. प्रॉब्लम है ना पायल, दैट इज किसी ट्विटर हैंडल ने बहुत अच्छा लिखा था. वी गेव आवर एजुकेशन टू इवेंजलिस्ट, वी गेव आवर एंटरटेनमेंट टू इस्लामिस्ट, एंड वी गेव आवर हिस्ट्री टू मार्क्सिस्ट. तो हमने अपने ही सुओ मोटो वी हैव कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड ऑल द थ्रेड्स दैट कनेक्ट अस टू आवर ओरिजिन. और बॉलीवुड का सबसे लीथल क्या होता है ना, इट इज वेरी सब्लिमिनल, इट इज नॉट ऑब्वियस. वो हम मूवी देखने के मूड में चले जाते हैं और बार बार वही चीज देख के then it just comes inside us. The friendly padri who gives orphan people a house, shelter in the church. अरे नहीं, लंगड़ा मुसलमान आके एक बनिया रेप कर रहा होगा लड़की को चावल के पीछे. वैसे सारी राशन की दुकान, सारी राशन की दुकानें सिर्फ हिंदुओं के पास होती है, मुसलमान तो कुछ करते नहीं. पुजारी लालची होता है. So I mean that is all a thing of the past, but वहीं से तो कहानी शुरू हुई है ना. मतलब और ये तो ब्रेन वॉश करा हुआ ना. वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर सेक्युलर. उन्होंने तो वो लोग को ये बात नहीं समझ आ रही, ये कन्वर्जन वाली बात समझ नहीं आ रही. दे बिहेविंग लाइक ऑस्ट्रिच. सर मिट्टी में डाल दो. सबके फैमिली ग्रुप्स वगैरह में कुछ साल पहले तक की बात तो थी. हमारे ही फेस्टिवल्स में हिंदूज वुड सर्कुलेट जोक्स मॉकिंग आवर ओन फेस्टिवल. But have you seen any other person mocking their own, any other person of another faith mocking their own? नहीं होता है. We just enjoy self-deprecation. It's reduced. I'm saying since a while it's reduced. People are a little more hesitant about sharing because उनको पता है कि कहीं ना कहीं से उनको फटके पड़ेंगे. But है दिक्कत. We are वो secularism अभी. But I'm happy ना कुछ. I mean I'm not happy in that sense कि ये सब हो रहा है. But at least it's coming out. ना people are being more aware. You're doing a great job because your first line which you said, we have a very short memory. Today I think is 1 year of Pahalgam that's happened right now, and you remember just after Pahalgam some shameless people sold their religion and went and said अरे यहाँ पे आ जाओ कुछ नहीं हो रहा है. You remember those shameless incidents just because they must have got a free hotel stay and free food. तुमने तो धर्म बेच दिया यार. I mean these are people from Bombay. I was shocked when I saw those despicable people saying अरे कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, हम तो यहाँ बहुत खुश है. These people are taking good care of us. क्या बकवास है यार. 26. And those even 10, 12 women went there. They had the kitty, some traveling, and then they were dancing and they were saying यहाँ के लोग इतने अच्छे, इतने sweet हैं, इतने sweet हैं यहाँ के लोग, इतने अच्छे. And they don't realize that these people, Kashmiri Muslims, only want their money. You think they are welcome there as tourists, but ask them to buy land there.
they will never be allowed to buy land. तुम्हारा मुझे एक पैसा बात तुम खर्चो उनके ऊपर तो वो वेलकम कर. मुझे एक बात बताओ ना, when you hear a lot of these people preach, you cannot wish someone on their festival because it is shirk or whatever they say, right? I don't know what is the exact word. So if just wishing is shirk, हराम but हराम हराम. haram or shirk, I think shirk, whatever. But you don't have a problem selling flowers and your stuff to pilgrims outside our tirtha kshetras and dham. वो shirk नहीं है. वहां से जो पैसा आता है that you can, वो तो हजम कर लेते हो, तुम लोग डकार देते हो उसको. How is that possible? नहीं, और तुम अब जैसे मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ, दिस गार्ड नेक्स्ट डोर, नॉट इज नो लॉन्गर वर्किंग हियर. वो क्या करता था, मुझसे पैसे लेता था सिर्फ. पर मैंने 3-4 बार नोटिस किया कि मैं दिवाली पे, नवरात्रों में सबको खाना देती हूँ, गार्ड्स को, सबको, तो वो नहीं लेता था कि ये हराम है उसमें, कि प्रसाद खाना. पर जब मैं उसको नवरात्रों में ही पैसे देती थी सबको, तो वो कहता था मुझे भी पैसे दे दो. तो मैंने कहा क्यों, ये हराम नहीं है, ये पूजा के पैसे हैं मेरे, ये मैंने मंदिर में ही रखे थे. तो हंसने लग जाता है, पैसे दे दो मैडम, दे दो. तो व्हाट आई एम सिलेक्टिव है. मनी हैज नो रिलीजन. एक वो मैं ट्वीट करता हूँ, मुला MOOLA is greater than mullah. That's how it works. I swear. So money has no religion. But this is at a guard. I'm telling you about even educated people. They will stand. They will not have. They love Shira, but they will not have Shira if it is given in a Satyanarayan ka prasad. I've experienced that. No? Oh my God. Yeah. So but when they do it, it's their being steadfast to their faith. If a Hindu says that, he's called a bigot, communal. So these are fault lines where every time we've been made to feel वो जैसे आई थिंक वो आनंद कहता ना, सारा सेक्युलरिज्म का भार सबको हम लोगों को ही उठाना पड़ रहा था आज तक. तो दैट इज द होल. सही कह रहे. बट प्रॉब्लम है ना, हिंदू इज द कद्दू. मैं बता रहा हूँ, हिंदू इज द कद्दू. ये कद्दू छुरी पे गिरे या छुरी कद्दू पे गिरे, कटना तो हिंदू को ही है. ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ. फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है. एक और चीज मैं बात करना चाहती हूँ अब, इसकी व्हाट यू कॉल, अमरावती में जो केस हुआ है, वो आयान लड़का था, उज़बेर ऐसे करके नाम था एक लड़के का. वो दोनों ने 180 लड़कियों को मतलब पैसे दिए, कॉफी पिलाई, बैग दिए, गिफ्ट दिए, 19 साल के लड़के ने. और जब उसने जो उसको पैसा, क्योंकि वो तो उसके फादर तो पंचर लगाते थे, तो वो इतना पैसा कहाँ से लाया? दैट मीन्स ही वाज प्लांटेड देयर विद एन एजेंडा टू इन्फ्लुएंस. He was giving so many gifts and taking them for coffee and taking them for dinners and to pubs and everything. These young girls, underage girls, and उनको वो करके, और तो उसको जब उसने वो वाला पैसा उज़बेर के साथ शेयर करने को मना कर दिया, तो उज़बेर ने उन लड़कियों की कई वीडियोस लीक कर दी कि ये वीडियोस लेके, तो ये एक आयान पकड़ा गया. अगर ये पैसे देता रहता तो अभी तक तो पकड़ा भी नहीं जाता. दिस इज व्हाट हैपेंड. 180 का 1800 का होता, we would not even have known about it. एंड ओवैसी का जो लीडर है, जैसे आपने पहले भी बोला, उसने क्या बोला कि 180 में से 8-9 लड़कियों का ही रेप किया है उसने, ज्यादा नहीं कि 180 तो बहुत होते. मतलब मैं हैरान हूँ इनके मेंटल लेवल पे. और तो बट अमरावती में होगा कुछ, यू थिंक फडणवीस विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन? I have no doubt. See, because Maharashtra has already implemented the anti-conversion bill, so that was implemented some time back. So the intent is very clear, and we must appreciate the efforts of the cops in Nashik also who went undercover. And amazing that. अगर वो नहीं करते ना, और ये इतना सारा evidence नहीं जमा होता ना, तो then these people, their ecosystem would have completely dismissed this off as a conspiracy. अभी उनको थोड़ा सा problem हो गया because the cops have hard evidence, और समीर मेरे को, हाँ बताओ, बोलो. आप पूछो फिर. Then I want to ask you a question, because नहीं, मैं कहती हूँ कन्वर्ट, ये जैसे CA हुआ, NRC हुआ, ये TCS में हुआ, जो उनके कंसल्टेंसी फर्म में हो रहा, फर्म में ऑफिस में हो रहा था, सब ये लोग लड़कियों को, हिंदू लड़कियों के साथ जो कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, मोलेस्ट कर रहे थे, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, उनका दिमाग खराब कर रहे थे. दे वर मेकिंग देम गो अगेंस्ट देयर पेरेंट्स, अगेंस्ट देयर रिलीजन, एवरीथिंग कर इनको रहे थे. और हमेशा इन लोगों के यहाँ पे एक ऐसी लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है जिसके ऊपर इल्जाम लगने वाले हो. उसमें उस केस में भी CA और NRC के टाइम पे भी एक उमर खालिद के साथ में जो थी ना, वो जेल से निकल गई बाहर ना, सफूरा या जगूरा. वो
प्रेग्नेंट हो गई थी। अब टीसीएस की बात आई तो जो लड़की पूरा कुछ हैंडल कर रही थी, वो हेड ऑफ एवरीथिंग, जो पूरा अपनी सेटिंग कर रही थी और जो कोऑर्डिनेट कर रही थी, अब वो प्रेग्नेंट हो गई। मतलब ये लोग करते कर किसी और प्रेग्नेंट इनमें से एक होके पतली गली से निकल जाता है। निकल ऐसे पड़ते कैसे हैं। चले? एंड व्हाट डिड यू वांट टू आस्क मी? No, पूछो। I wanted to ask you now. This is see, every day. अभी ये corporate वाला तो हो ही रहा है, and we've been hearing, and I can guarantee you more will come out. But even otherwise, when before this has happened, every day or every other day, you would hear of one story somewhere happening in some part of India, and many a times the girl would figure out that this person is pretending to be Abdul Akash banke aa raha hai, ya whatever it is. But why do sometimes at a fundamental level, I think our girls also need to be educated, right? I mean, they need to be told about what is happening. Are they? I mean, कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम knowingly you are entering into hell. What can you stop? Can you stop someone who wants to do this themselves? मतलब किस को रोकेंगे यार? नहीं, बात रोकने की नहीं है। मेरे को कहीं ना कहीं लगता है, मैं इसमें माँ बाप को ब्लेम कभी नहीं दूंगी कि कल पता नहीं हमारे बच्चे भी, किसी के भी बच्चे आके, तुम्हारे हमारे हाँ, एक्स हो वाई सकता है. जी, It can कोई भी happen बच्चे आके बोल सकते हैं। हाँ, इट कैन हैपन टू एनीवन, सो आई विल नेवर yeah. ब्लेम द पेरेंट्स, क्योंकि No, नो no. पेरेंट वुड लाइक देयर चाइल्ड टू, इट्स लाइक But कमिटिंग the सुसाइड, but the इट्स लाइक parents should the children informed about what's going on, right? What's happening. Make them feel proud about समीर, their वो own अभी religion. नहीं, वो समीर छोड़ो ये ना. अब नहीं, नहीं वो नहीं, अभी नहीं होगा ये। 18 से लेके 22-23 तक नहीं होता है। दे आर इन दैट, दे दैट पीयर प्रेशर, दे गो टू हाँ, हाँ. कॉलेजेस एंड देन दे से आपको शुरुआत हम से सब करना है. हाँ, यूनिटी नहीं, ये आपको नहीं, ये अपने आप इनको अक्कल आती है। और ये जब अक्कल आती है ना, तो फिर ऐसी आती है कि देन दे वांट मोदी आल्सो टू विन, बिकॉज़ आई हैव सीन माय Yeah. किड्स आर लाइक, अब तो बहुत बड़े हैं वो, मतलब 35-40 साल के होने लगे हैं, पर मैंने इन लोग के फ्रेंड्स को ग्रो करते देखा है। मतलब धीरे 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 सारे बच्चों को अपनी कॉलोनी में, जो मैं पार्क जाती हूँ, मैंने बच्चों को एक लेवल पे आते देखा है, और मैं उनको देख रही हूँ कि वो 18 to 23 पे क्या थे एंड 23 के बाद क्या है। बहुत चेंज आया है, But that is a आ very रहा है। crucial 18 हाँ, to दैट्स अ वेरी 23. क्रूशियल। If they slip in that period, then there's no turning back for them. Then there's a lot of trauma या that awaits them. हाँ, दैट ट्रॉमा इज देयर, बट द थिंग इज, पर अब ये है कि हमारी थोड़ी सोसाइटी भी थोड़ी ओपन अप हो गई है। अगर किसी Already. बच्चे से गलती हो जाती है, या कोई ऐसे ट्रैप में फंस जाता है, सोसाइटी उसको वापस बहुत अच्छी तरह लेती है अपने, दे Yeah. अगेन हिंदू सोसाइटी के अंदर ये आ गया है, वो वापस उसको अपने आगोश में ले लेते हैं टाइप, कि And girls, डोंट। I think, are now talk freely with their parents as well. I think या in urban India, or at least in some in Mumbai वगैरह, but I don't know. But somehow, see again, मुझे एक बात, I was always wanted to make a video, but I've never had a chance. But since I'm talking to you, I don't know how much more time I have. But नो maybe नो, I'll take प्लीज a टॉक। couple. I just wanted to say one thing. See, the other issue is we are a very disunited lot. And when I say disunited, I am not talking about political unity. जो हम लोग कहते हैं ना कि भगवान के पास हिंदू धर्म में पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हैं. So while that is an advantage, it is also turning out to be a problem because see, बचपन से हम कहानियां सुनते आए. हमने रामायण कॉमिक्स में पढ़ा, अमर चित्रकथा में पढ़ा, महाभारत में पढ़ा. So we know what happened, but we don't know the underlying spiritual significance of. ट्रू। अभी आपने केरला स्टोरी में देखा होगा how easily that girl in the movie manages to even make the Christian girl feel that her prophet or God is not as strong. Hindus को तो वो मतलब वो कहते हैं ना, तुम आपका भगवान राम है. So why did Ram have to go through all this trouble to find his wife? If he was God, he could have got her anyway. And that is where our youngsters are not able to answer this. And then they are, that's the hook. And then they get filled with self-doubt. Why did my God have to go through all of this? But if we are able to explain this to our youngsters, or if they right from the beginning, if they go through some orientation, there are a lot of organizations like Chinmaya who do all these बच्चों के लिए बाल विहार, where they teach them about the Samir, we'll have significance. to make it. No, Samir, we'll have to make it very interesting. If we take We them to do. an organization like Chinmaya, नहीं, आपको ये करना पड़ेगा जैसे बुद्धिज्म में होता है। लोग अपने मैं घर में लाइक बोलते कि इतने सारे लोग हैं, वो हो जाए ना तो हो जाएगा, See, this तब फैलेगा। last semester that went by, I dropped all. I go as a visiting faculty to a couple of universities on and off. So last semester, I told the dean that I don't want to do any core marketing strategy, any other subject. आप सिर्फ मुझे Indian management thoughts दे दो.
and I thoroughly enjoyed. I taught close to about 300 students in the last semester from December to March. We were Wow. teaching them applications of Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita, Chanakya Niti, Vidur Niti, and a couple of other things. But we made it so interesting. Amazing time we had. I explained to them why Sri Ram or Sri Krishna, even though they were God, they came down to earth and they themselves went through gurus. Prabhu Sri Ram learned under Vashish, Krishna learned under Sandipani. But why did they do that? If they are God, they know everything. So unko guru ki kya zarurat? But they took a guru to show the rest of the people that to find the truth, you need someone to hold your hand. आप उसको इस तरह से बताओगे, then then the whole we had a wonderful time, to be very honest. And these are all first year BBA. You have to make it interesting. You have to make it very interesting. 18-year-old kid, and I thought कितने लोग आते हैं वैसे attendance के लिए इन लोग they don't. But touch wood, I mean my classes were full. I mean I really enjoyed and we had a good time. But ये जरूरी है. I think we have got to instill that sense of pride and purpose कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है. Absolutely. I totally agree with you. But Sameer, मेरे को ऐसे लगने लग गया है कि we are not divided as in our country also. We are not divided as Hindus and Muslims. We are divided as pro Modi and anti Modi. मुझे ये पूरा जो मैं आजकल इतना घूमती हूँ ना, मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि हम हिंदू मुस्लिम हैं, क्योंकि हिंदूज में भी बहुत लोग हैं who hate Modi so much that in that hatred they hate सनातन धर्म. So they है ना, मैंने ये देख जो मेरी समझ में आया, मुझे जितना मैं घूम रही हूँ और जितना मैं पार्क्स में जा जाके बैठ के लोगों से बात करती हूँ, तो मैंने बहुत देखा. और कॉर्पोरेट लेवल पे तो इतना लेफ्टिस्ट है, इतने लिबरल हैं, और वो जैसी बातें करते हैं ना, मतलब मैं उनको बोलती हूँ गार्डन में तो हमारे पार्क में तो कोई नहीं है, यू कैन टॉक टू मी ओपनली. तो नहीं, बट उनकी बातें सुने तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट जो लोग अंबानी में काम कर रहे हैं ना, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ यंगस्टर्स हु आर वर्किंग इन, वो बहुत रिलीजियस कॉन्शियस हो रहे हैं. Because it's at the top ना. आप जब भी देखो when foreigners have come, see one thing you got to appreciate about the Ambanis, जो भी कोई विदेशी उन्होंने सबसे आरती करवाई है. सबको लाइन में खड़ा करके उन्होंने भजन गवाए हैं, आरती करवाई. See whatever the optics are wonderful and you got to give them credit for that. They are unabashed Hindus and they have invited everyone. जितने सारे बड़े बड़े politicians हो या entertainers हो, सबसे उन्होंने आरती करवाई, पूजा करवाई, गाना गवाया, भजन गवाए, सब किया है. तो मजा आता है. That is so I love watching them do it. I think it's a beautiful exhibition of our religion. That's what. पर बोलिए. आपने दूसरा ना, अभी जो जैसे हम बॉलीवुड की बात करते हैं, कॉर्पोरेट में एक और बात, द एडवर्टाइजिंग डोमेन हैज ऑलवेज बीन लेफ्ट लीनिंग, एंटी, राइट फ्रॉम आवर टाइम्स. जो सारे एडवर्टाइजिंग के डॉयंस थे, वो सारे एक मतलब दे वांट टू पोर्ट्रे देमसेल्व्स एज द उस समय वोकिज्म नहीं था, बट दे वर डिफरेंट. एडवर्टाइजिंग वाले यू कुड सी वो पोनीटेल लगा के घूमते थे. दे वांटेड टू ऑलवेज बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर कोर मार्केटिंग पीपल लाइक अस, एंड दे ऑलवेज वर इंस्पायर्ड. आज के एड्स भी आप देखो, अभी वो आपने लेंसकार्ट वाली एड देखी एंड डिड यू सी दोस एड्स इन केरला? ओह माय गॉड, आपने वो देखा? महाराज की बात करी, वो भगवान श्री कृष्ण टचिंग द मीट एंड बीफ. व्हाट द हेल वाज गोइंग ऑन देयर? नहीं, उनको ऑफर किया गया कि भगवान कृष्ण बैठे हैं और उनको मीट. अच्छा, एक और भी तो आई है. अभी एक एड आई है केरला से ही आई है, जिसमें उन्होंने नहीं लेंसकार्ट की एड है कि हाँ, लेंसकार्ट की एड है कि साउथ इंडियन पीपल आर सेलिब्रेटिंग पोंगल, और पोंगल सेलिब्रेट करते खजूर खा रहे हैं. मतलब पोंगल में कब खजूर सर्व हुआ है, मतलब अमेजिंग. और वो सारे मॉडल्स उठाए, इट लुक लाइक दे पिक देम अप फ्रॉम जेएनयू, झोला छाप पीपल. मतलब हर चीज में ना ये कॉर्पोरेट वाले कुछ ना कुछ डाल रहे हैं इस्लाम का है. पर मैं इनको तब मानूंगी समीर, मैं इनको तब मानूंगी जब ये कोई इस्लाम रिलेटेड एड दे. क्यों? वो एक एड बनी थी दिवाली की कि हिंदू लड़की की शादी हो, तनिष्क ने एड निकाली कि हिंदू लड़की की शादी होती मुस्लिम परिवार में, और वो उसके लिए बहुत ज्यादा वेलकम के लिए कुछ हिंदू का वो करते हैं, नॉट पूजा पर कुछ कल्चर से रिलेटेड करते हैं. तो शी इज सो इम्प्रेस. अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि अम्मी आंटी आप ये भी करेंगी मेरे लिए. और फिर वो बताते नहीं हम एक ही तो हैं, नॉट रियलाइजिंग दैट द मदर हैज नॉट डन एनीथिंग रिलीजियस, सनातन धर्म से रिलेटेड नहीं करा, कल्चर से रिलेटेड कुछ किया. कल्चर जिसमें तनिष्क की एड. ये तो सारे सभी करके रस्में दिवाली, मेरे को समझ ही नहीं था रस्में दिवाली क्या होता है. मतलब इनसे बोलो कभी बोले ईद की शुभकामनाएं लिखें, कभी नहीं लिखे. मैं इनको माहौल मातम गैंग बुलाता हूँ मैं.
नहीं और समीर, once I went to this, my friend was here from Australia, so she wanted to हाँ, do shopping, तो उसका टाइम था, दिवाली का टाइम था, तो हम एक बहुत बड़े शोरूम में गए, डिपार्टमेंटल स्टोर में, वेरी गुड क्लोथ देयर, आई डोंट वांट टू टेक देयर थिंग, तो उन्होंने अपने शॉपिंग। पूरे शो विंडोज में भी हैप्पी दिवाली लिखा हुआ था। तो जब मैं जाने लगी तो वो ना, क्योंकि उसने इतना सारा सामान खरीदा, तो हाउ इट इज, दे गेट वेरी इंप्रेस, करे वाह इतना सारा सामान खरीदा, तो सभी उठ के थैंक यू मैम एंड कर रहे थे, एंड उन्होंने मुझे ओके हैप्पी दिवाली मैम, खूब हैप्पी दिवाली मैम का शुभ दिवाली। सब वहां पे हिंदू ही थे, सब शॉक्ड हो गए। मैंने कहा पहले तो अपना हैप्पी दिवाली का वो हटाओ, जब मैं कल कपड़े लेने आऊंगी मुझे वहां पे शुभ दिवाली लिखा होना चाहिए। मैं कहा ये क्या आप लोग एक दूसरे को हैप्पी दिवाली कर रहे हो? वो लोग क्या बोलते हैं क्रिसमस की शुभकामनाएं, वो लोग क्या बोलते हैं क्या? बोलते हैं ईद की शुभकामनाएं। मैं कहा पर तुम अपनी मेरी और हैप्पी दिवाली मनाओ, इन हाँ, मुबारक दिवाली कितने हमारे व्हाट्सएप चैट में आता है दिवाली दिवाली मुबारक या। मुबारक, ओ गॉड, लाइक and then they say you're being communal if you're objecting to it. I'm the anyway labeled as communal. If I hypothetically, if I had 100 friends, I'm left with 3 4. The other problem ना, मैं एक छोटा सा मतलब I want to make a point, in Hindus we spend a lot of time arguing amongst ourselves. अभी हमारे में नहीं होता है, बट आप कुछ ऐसे ग्रुप ही है एक पे, मतलब उनका सारा दिन से शुरू होता है माई गॉड इज बिगर देन योर गॉड। इट्स नॉट अबाउट अनदर रिलीजन, ये आपस में मेरा संप्रदाय आपके संप्रदाय से बड़ा है, मैं वैष्णव हूँ, मैं शाक्त हूँ, मैं शैव हूँ, मैं ये हूँ, एंड देन दे आर आर्ग्यूइंग अमंग्स देमसेल्व्स। यार मतलब एजुकेशन एंड नॉलेज इज नो गारंटी फॉर कॉमन सेंस, नो मतलब ये ऐसे भी लोग हैं, सारे टाइप के लोग होते हैं, पर बहुत हाँ सारे स्ट्रेस, बट ये आपको दूसरे में नहीं मिलेगा ना। यू विल नॉट सी सेक्ट इन क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स आर्ग्यू अमंग्स देमसेल्व्स बिकॉज अगेन दे आर एब्राहमिक मोनो दिस थिंग, बट या बट दे या स्टिक टुगेदर ना, भले आपस या में बट उनके कुछ भी प्रॉब्लम्स हो ना। बट समीर, मैंने जब बिहार का इलेक्शन हो रहा था ना, तो मैं तो कोई बिहार गई नहीं, ना मैं कोई बीजेपी से रिलेटेड हूँ, कि ना मैं उसकी मेंबर हूँ, ना कुछ हूँ, तो मैं तो बिहार गई नहीं। पर मैंने क्या किया, यहाँ पे पार्क में हमारे एक कॉलोनी है, यहाँ पे वहाँ बिहारी ही बिहारी, इवन हमारी हाँ, लेन में सारे बिहारी, ऑटो वाले बिहारी, प्रेस वाला बिहारी, सारे आगे के गार्ड्स बिहारी, तो आई रियली हैड अ गुड टाइम। मैंने इतनी गप्पे मारी ना इन लोगों से, जब ये लोग इनकी 7 बजे ड्यूटी खत्म होती तो मैं पार्क में बोलती थी पार्क में मिलना, तो 10 12 आ जाते थे। फिर दिन मैं कई लोग संडे को मिली, किसी को वो संडे को पी रहे हैं। मैंने कहा इतनी क्यों पी हुई है? कहते बिहार में नहीं मिलती, हम यहाँ पी रहे हैं। रियली हैड अ बिग लॉट ऑफ chatted with him. Sameer Sharma also came, then 2 of my other friends also came one day. I said please come with me, आधे ज्यादा लोग पिए होते हैं यहाँ पे हाँ, शाम के टाइम। तो यू वोंट बिलीव, जब मैं उनसे बात करती थी ना, दैट डे आई रियलाइज दैट हिंदूज आर नॉट कि तेरे भगवान मेरे, हिंदूज आर प्रो मोदी एंटी मोदी डिवाइड। वहां पे भी मेरे को जो पूरा पता चला, भगवान की बात नहीं हुई, सनातन धर्म की बात हुई, पर उनको लगा सनातन धर्म बीजेपी उसका फायदा उठा रही है, प्रोपेगेंडा वो कर रही है, उसका प्रचार करके उसको प्लेइंग विद द रिलीजन। और जो मोदी जी में मानते थे वो कहते उन्होंने हमारे को राम मंदिर दिया, ये दिया। आ होल कंट्री इज नाउ डिवाइड। आप लुक एट ट्विटर, एंटी मोदी के और प्रो मोदी में कितनी लड़ाई है। अब सोशल मीडिया पे देख, वही तो है ना, रिलीजन की तो हो ही नहीं रही, रिलीजन की हो ही नहीं रही जरा सा। आप सब, और ना सब इतना हीटेड अप है ना, मतलब इवन मैंने देखा है पीपल हु हेट मोदी ना, मतलब, पर अब मेरे पास तो उनके लिए बहुत अच्छा जवाब है। वो मुझे, मैं कहीं पार्टी में जाती हूँ, वो बोलते हैं ना वो वी हेट मोदी, मैं कहती मोदी, एंड आई स्टार्ट क्राइंग लाइक आर्टिफिशियल। मैंने कहा मोदी सो अपसेट यू हेट हिम, मैंने कहा इट रियली बॉदरिंग हिम दैट यू हेट हिम, बिकॉज़ देयर इज नो पॉइंट आर्ग्यूइंग विद देम, जस्ट मॉक देम। आई फील नो आई पॉइंट। हेट ज्यूज, मेरे को एक कहती है आई हेट ज्यूज, एक हिंदू कहती है आई हेट ज्यूज। मैं कहा ओ माय गॉड, नेतन्याहू इज लाइक वेरी अपसेट दैट यू हेट हिम। नेतन्याहू आज सो नहीं पाएगा बिकॉज यू हेट हिम, बट मतलब मैं नॉनसेंस। अक्सर अपने कुछ लोगों को मैं कहता हूँ यार, ये जो कांग्रेस के जो पीडीएट लोग हैं, जो मोदी को वो क्लासिक रेज बेट ट्वीट्स डालते हैं एंड वी रिप्लाई टू देम एंड दीस गाइस गेट सो मेनी व्यूज, उनकी रीच बढ़ जाती है। मैं कहता हूँ यार, कभी आपने देखा है कोई लेफ्टिस्ट हैंडल मेरे ट्वीट पे कुछ कमेंट पास करे? नहीं करते हैं वो लोग, बिकॉज दे जस्ट स्टे अवे फ्रॉम अस, दे ऑपरेट इन देयर ओन इकोसिस्टम। हम लोग समझते हैं कि हम लोग उनकी बढ़ा अरे रहे उनका तो वीडियो का स्क्रीनशॉट लो, उसके ऊपर पोस्ट कर दो कुछ। हैं। बट मेरे को अरफा के ऊपर तो कुछ ना कुछ कमेंट करना होता है। वो उसको मैं करो ना। उसको मैं बोल, मैं तो उसको बहन बुलाती हूँ, उसको और राना को अरफा बहन। जैसे लोगों की रीच तो बहुत बड़ी है, तो हम लोग के कोट करने ना करने से फर्क नहीं, सो वी हैव टू कॉल देम अप। अरफा हो या वो हमास का हार्पिक हो, उनको तो
वी हैव टू कॉल देम आउट, नो। बट ये जो छोटे मोटे हैंडल्स है उनको क्यों बढ़ावा दे रहे हैं आप? मुझे मेरा ये कहना था, बाकी बड़े बड़े लोगों को तो अभी वो सब कुछ नकली भी है, उसके भी ट्वीट को आई लव टू कॉल हर आउट, मतलब वो भी बहुत बकवास करते हैं। पागल हैं ये लोग इतना। और मेरे को तो हैरानी होती है कि इतना दे मॉक हिंदू पॉलिटिशियंस मॉक आप सनातन धर्म सो मच, एंड हिंदू ही जाके उसको वोट दे रहे हैं, हिंदू ही जाके। पर आजकल समीर, यू माइट फील बैड बिकॉज यू आर अ बिग बीजेपी सपोर्टर, पर आजकल समझ नहीं आता किस नेता को कुछ कहो, पता नहीं ना कब इधर आ जाए वो, इसलिए ये भी डर लगता है। रिमेम्बर दैट नरेश अग्रवाल इन यूपी, when he when what he said, what nasty thing, what राम वगैरह बात करी थी उसने। सीता जी के ऊपर उसने कितना कुछ बोला, और फिर देखो और आज वो सीता जी के ऊपर कुछ बोला ना उन्होंने, और आज वो बीजेपी में है, तो इसलिए समझ ही नहीं आता। उसपे मेरा एक पॉइंट है, देखो ऐसा है, वो आ गया बीजेपी में, वो कोई बड़ा नेता बन गया बीजेपी में, नहीं, आज की तारीख में उसका कोई आवाज ही नहीं है। वो आके उसको एक न्यूसेंस वैल्यू तो कम हो गई ना। अगर वो आ जाता बीजेपी में और उसको कुछ हम अच्छे लेवल पे लाके उसको प्रमोट पब्लिसाइज करते तो फिर दिक्कत हो जाती। ऐसे बहुत लोगों को बीजेपी किया है एंड दे हैव बीन साइडलाइन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, व्हिच इज इन अ वे अ वेरी गुड टैक्टिक ऑफ न्यूट्रलाइजिंग। End of the day, yeah, true. And Sameer, end of the day, BJP is a political party. It's just that we have attached our emotions to the party because it is because of Mr. Modi and Mr. Yogi ji, or because we have attached our emotions to it, so we don't realize it. We get agitated. We feel bad. We feel as if it's an insult. हम अपनी humiliation में उसको ले लेते हैं. But end of the day, it's a political party. If it has to win, अगर वो जीतेगी नहीं तो हमारा हिंदुत्व का वो भी खत्म हो जाए. वो every voter should realize one thing. अगर आप change चाहते हैं, then you need to be in power and you've got to win. You can't effect change by being in opposition. We would not have had Naxal Mukt Bharat. We would not have had Article 370. We would not have got Ram Mandir by simply staying in opposition. You've got to realize the reality of politics. And whatever. चलो मैं कोई perfect नहीं है, किसी बात नहीं, मैं भक्त नहीं हूँ for a minute. Whatever. Let's accept all that. But किसी को भी objectively पूछो कि if you have to choose between a BJP government that makes mistake and a Congress government, I would always, the worst BJP government I think is better than the best Congress government. Absolutely true. And Sameer, अगर हम लोग थोड़ा बहुत बोलते हैं लोगों ने, but I don't care, yeah, that's okay. नहीं, एंड समीर, बहुत बारी होता है, जैसे मैं तो बहुत सारे पॉइंट्स पे क्रिटिसिज्म भी करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि और मेरे को सबसे अच्छी बीजेपी की बात लगती है जब हम लोग कुछ बोलते हैं बीजेपी सुनती है, ऊपर के हाई लेवल में हाई कमांड सुनते हैं। पर मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आई डोंट नो व्हाई सम पीपल अटैक मी, मैं तो सोच भी नहीं सकती दैट आई वोंट बी वोटिंग फॉर बीजेपी। अभी भी तो मैंने कितने अब मैं यहाँ बोल रही हूँ, बोलना नहीं चाहिए, मैंने भी तो 10 लोगों को वेस्ट बंगाल की टिकट खरीद के दी है ना। अब मैं क्योंकि मैं तमाशा नहीं करती, हल्ला नहीं मचाती, डजंट मीन दैट आई एम नॉट अ सपोर्टर। आपकी और हम लोगों की बात अलग है ना। वी हैव लिव्ड थ्रू द कांग्रेस era. The challenge is with those who the millennials, the Gen Z, millennials बोलते हैं ना उनको, जो 2000 के बाद, so those who were born in 2004, 5, they're probably about 20 now, 2021, and if they jog their memory back, they can only see what's happened between 2015 to 25, the last 10 years of their life, and they've been able to see a lot of good things, and they've also been able to see this whole as you call it, the Hindu Muslim or whatever communal discussions going on. So they are likely to blame BJP for this because they really don't know what has happened in the past. And there are a lot of people who have made good money during Congress's time, so their loyalty is with Congress. हाँ, they have. People have switched also. जो leftist है, उन्होंने मोदी जी को आते हुए देख के they have switched. They have also made, so let's not go down that road because you also know that. But lot of youngsters are now getting aware of the reality of what went down in India between 2004 and 14. The bomb blasts, the terror attacks, the scams. Social media has played a very big role in making people aware of. And then secondly, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि अब ना जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में इलेक्शन होते हैं ना, उसमें जैसे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या XYZ जो भी पार्टी हो, उनके भी पॉलिटिशियन जा जाके पार्टिसिपेट करने लग गए हैं। तो उससे क्या है, यूथ को पता चल रहा है अबाउट व्हाट कांग्रेस इज ऑल अबाउट एंड व्हाट बीजेपी इज ऑल अबाउट। आप देखो ना, आज की तारीख में IPL से ज्यादा डिस्कशन पॉलिटिक्स पे हो रहा है। हाँ, वो तो है, कहीं भी जाओ, अरे सब्जी लेने जाओ, सब्जी वाले के पास भी कुछ ना कुछ बात बोलने की होती है। मेरे को तो देख के शुरू हो जाते हैं। मोदी जी ने एक काम तो सही करा है, सड़क पे आम आदमी के अंदर वो पॉलिटिकल डिस्कशन
का कीड़ा कीड़ा डाल डाल दिया है सबके अंदर, दिया। that is. You won't believe, Sameer, when I don't take the car and driver with me. So my kids are very angry. They always angry with me over this. I always like to take a rickshaw or a scooty or a Uber. So they tell me हाँ don't take a Uber because we don't know who the driver will be, and you'll start chatting, and then you can get into mess. So they're very scared when I take Uber. So then मैं Uber avoid करके मैं कितने सड़क पे चलती रहूंगी, जाके रिक्शे को पकड़ूंगी, फिर आधा उससे बात करके फिर मैं ऑटो पकड़ लूंगी. बट आई लव टॉकिंग टू देम, एंड इन्हीं लोगों के पास सारी खबरें होती हैं. बड़ा मजा हाँ आता हाँ, है मुझे. सारी खबरें मुझे होती तो है, सही बात इनकी है. सारी खबरें होती हैं इनके. और मेरे को और इनसे तो अरे अगर आप बस स्टॉप पे खड़े हो जाओ जाके, मैं तो गाड़ी रोक लेती हूँ, बस स्टॉप पे जाके खड़े हो जाती हूँ. बिकॉज़ इतनी देर सो मेनी वुमेन. तो माय किड्स कीप टेलिंग मी तुम कहाँ हो, बिकॉज़ माय सन हैज पुट अ ट्रैकर ऑन माय फोन. ही सेज व्हाट आर यू डूइंग एट मदनगिरी बस स्टॉप. आई सेड नथिंग, मैं तो यहाँ आम खरीद रही हूँ, खरबूजा खरीद रही हूँ. उनको नहीं पता कि मैं वहाँ पे खड़े होके लोगों से बात कर रही हूँ. किसको Oh वोट देना है, man. गॉड को वोट देना है, क्या कर रहे हैं. आई गॉड क्रेजी इट इज. थैंक्स सो मच Sameer, really had fun. I think after ages I've spoken to somebody for 45 minutes. Really enjoyed it. I enjoyed it. In fact, I've not done this in about a year or two actually. So Hmm. count me in the next time Smita or Nandini, now that she's got her account back. Yeah, yeah, If but you have anything else, we can talk about I some really other wanted to, things. yeah, I wanted to do a chit chat with you with very casual thing, because so many times it have everybody is talking such serious stuff ना. तो मेरे को लगा कि थोड़ा casual करके अपना मैसेज कन्वे करते. मैं कहती हूँ 100 जने भी वीडियो देखते हैं ना, हमारा मकसद पूरा हो जाए, क्योंकि वो 100 हाँ, 100 होता जनों है. के बच्चे के साथ बात करेंगे. Absolutely. ठीक है, Okay, करेंगे. thank you so much. चलो, see you around. Thanks. Bye. Bye, bye, Bye. bye. Thanks.